یہ کیا کر رہے ہیں آپ ابراہیم؟ چھوڑ دیں اسے۔ وہ بدر خان پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر ڈالے۔ جب زائنہ نے بھاگتے ہوئے آ کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج تو شاید اسے روکنا ناممکن ہو گیا تھا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ زائنہ، آج میں اس بے غیرت کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے میرے بھائیوں کا قتل کیا، میری بھابھی کا قتل کیا، اس نے میرے دوست جیسے بھائی کو مار ڈالا۔ میں اس کی جان نکال لوں گا۔ اس نے میرا ہنستا بستا کھیلتا ہوا گھر برباد کر دیا۔ وہ ایک گولی چلا چکا تھا جبکہ بدر خان بنا خوف و خطر وہاں کھڑا تھا۔ اپنا انتظام بھی وہ کر کے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی بندوق تھی۔ مجھے مارنے سے پہلے اپنی بیوی کو مار ابراہیم، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسی کے کہنے پر ہوا ہے۔ ارے میں نے اسی کے کہنے پر تو مارا تھا، یہ تو تجھے مروانا چاہتی تھی۔ وہ تو تیری خوش قسمتی ہے کہ اس دن گاڑی میں تو تھا نہیں، ورنہ تیرا جنازہ تو 4 مہینے پہلے ہی اٹھ چکا ہوتا۔ اس نے اس پر انکشاف کیا تھا۔ وہ اس کی بات سننے کے بعد بھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ اس کی طرف بڑھا تھا، کیونکہ اسے اس کی کسی بات پر یقین نہ تھا۔ بکواس کرتا ہے، اپنا گناہ چھپانے کے لیے میری بیوی پر الزام لگا رہا ہے۔ وہ غصے سے اس سے بولا، لیکن بدر خان تو جیسے سارے ثبوتوں کے ساتھ آیا تھا۔ میں بکواس کر رہا ہوں؟ تو ذرا اپنی بیوی سے پوچھ تو صحیح کہ یہ آدھی آدھی رات کو مجھے فون کیوں کرتی تھی، کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے کیوں آتی تھی۔ جن ہوٹلز کے ٹیبل بک کروا کے یہ مجھے ملنے آتی تھی نا، وہ لوگ بھی اس کے علاوہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ابراہیم مصطفیٰ کی بیوی کو دنیا جانتی ہے۔ اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی کب کیا کرتی ہے لوگ خبر ضرور رکھتے ہیں۔ اسی نے پلاننگ کی تھی تمہیں مارنے کے لیے، کیونکہ یہ عرفان سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کا شادی سے پہلے عرفان کے ساتھ افیئر تھا، اور تم سے شادی بھی اس نے صرف اور صرف دولت کے لیے کی تھی۔ تم سے اسے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی تم سے اسے محبت ہوئی۔ ارے تمہارا بچہ پیدا کر کے پچھتا رہی تھی۔ جن ہسپتالوں میں جا کر اس نے تمہارا بچہ مارنے کی سازشیں کی ہیں نا، وہ بھی ثبوت میرے پاس ہیں۔ وہ تو پوری پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اب بھی خاموش نہ ہوا۔ یہ عورت، اس کا کوئی ارادہ نہ تھا تمہارے ساتھ زندگی بتانے کا۔ یہ تمہیں مار دینا چاہتی تھی، کیونکہ تم اسے طلاق دینے کو راضی نہیں تھے۔ وہ اسی انداز میں بولا کہ ابراہیم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دفعہ تو اس کی باتوں پر یقین کر ہی گیا۔ نہیں ابراہیم، ایسا کچھ نہیں۔ میں بالکل بھی عرفان سے کوئی محبت نہیں کرتی، نہ ہی میرا عرفان کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ تھا۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ میں آپ کو مارنے کی کوششیں کیوں کروں گی؟ آپ میرے شوہر ہیں، میرے بچے کے باپ ہیں۔ اس کا انداز خوف میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ اس کی ساری باتیں کہیں سے بھی اس کے پرانے رویوں سے میل نہیں کھاتی تھی۔ ابراہیم یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تم سچی ہو نا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ زینب مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ عرفان سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ خاموش، جھوٹ مت بولنا، ایک لفظ بھی جھوٹ مت بولنا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ زائنہ، میرے پاس آج بھی تمہاری کال ریکارڈنگ موجود ہے جس میں تم نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اسے عرفان سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ عرفان سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اور تم نے بھی تو یہی کہا تھا کہ تم ابراہیم خان سے جان چھڑوا کر عرفان سے شادی کر لو گی اور زینب کو میری زندگی میں شامل کر دو گی۔ آج زینب مر چکی ہے، وہ چلی گئی ہے اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مجھے چھوڑ کر، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنے بچے اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کبھی مجھ سے محبت کرتی ہی نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ عرفان سے محبت کی، اور کل رات تم نے اسے مار ڈالا۔ جب کل رات تم مجھے فون پر بات کر رہی تھی تب تم اس کا قتل کر رہی تھی۔ یہی حقیقت ہے نا؟ بولو زائنہ، یہ جھوٹ ہے؟ کل رات تم نے دانیال کے سامنے اس کا قتل کیا ہے نا؟ بولو، اب چپ کیوں ہو؟ خاموش کیوں ہو؟ بولو، کیا یہ سچ نہیں کہ تم نے زینب کو قتل کیا ہے، صرف اس لیے تاکہ وہ تمہارا راز نہ کھول دے، کسی کو بتا نہ دے کہ تم زینب کو ٹارچر کرتی رہتی تھی، دن رات اسے اذیت دیتی تھی، اسی لیے زینب اتنی بیمار تھی؟ وہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا، جبکہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا اسے دینے کے لیے۔ اس کے تو الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ کوئی بہانہ بنانا چاہتی تھی، ابراہیم کو اپنا یقین دلانا چاہتی تھی، اور ابراہیم اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ کچھ بولے گی، شاید وہ اپنی صفائی میں کچھ کہے گی، لیکن اس کے پاس کچھ تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ وہ اتنی جلدی پھنس جائے گی یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو خود کو بہت چالاک سمجھتی تھی، لیکن اس مقام پر آ کر اس کی ساری چالاکی نکل چکی تھی۔ ابراہیم اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ بولو زائنہ، کیا یہ سچ ہے؟ وہ اس کی طرف آتے ہوئے اس کے کندھے سے پکڑ
पकड़कर उसे झिंझोरने लगा, जब पीछे से बदर खान ने अचानक एक वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, जिसे सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वो कह रही थी कि ज़ैनब तुमसे मोहब्बत करती है। ज़ैनब ने कभी इरफान को चाहा ही नहीं। अगर तुम चाहते हो कि ज़ैनब हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाए तो तुम्हें इब्राहिम को इस दुनिया से हटाने में मेरी मदद करना पड़ेगी। वो बोल रही थी और इब्राहिम सुन रहा था। वो उसकी कॉल्स को रिकॉर्ड करता था ताकि वक्त आने पर काम आ सके, और आज उसके काम आ ही तो रही थी। वो सारी रिकॉर्डिंग्स, उन्हीं के सहारे उसका सारा राज खुल चुका था। इब्राहिम सब कुछ जान चुका था। कह दो कि ये झूठ है। वो उसकी तरफ देखते हुए बंदूक अब उसकी तरफ कर चुका था। जाइना कुछ नहीं बोल रही थी। सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी। तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए थी ना? तुम मुझसे ताल्लुक ख़त्म करना चाहती थी, तो ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ मैं तुम्हें ज़ाइना। लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें तलाक देने के बाद ज़िंदा छोड़ दूंगा। लेकिन ये मत सोचना कि तलाक देने के बाद मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। नहीं, मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी। तुमने मेरा घर बर्बाद किया, तुमने मेरे भाइयों को मरवाया, मेरी मासूम भाभी को मरवा डाला, तुमने मेरे भतीजे और भतीजी को यतीम कर दिया। तुम जीने के लायक नहीं हो। वो उसी की तरफ बंदूक तानते हुए कहने लगा। उसके गुस्से की कोई इंतहा न थी। वो एक ही लम्हे में उसके सीने के बीचों बीच गोली चला चुका था, ये जाने बिना कि उसका अंजाम क्या होगा। बदर खान ये सब कुछ देखकर परेशान हो गया था। उसे नहीं लगा था कि इब्राहिम इतना बड़ा कदम उठाएगा। उस वक्त वो वहाँ से भाग जाने में ही अपनी बेहतरी समझ रहा था, और उसने ऐसा ही किया था। वो वहाँ से भागने के लिए पर तोड़ने लगा, जब अगले ही लम्हे इब्राहिम ने उसे भागते देख एक गोली उसके कंधे पर चलाई। वो लहरा कर ज़मीन पर गिरा था। जब इब्राहिम ने दूसरी गोली चलाई, लेकिन इस दफ़ा उसका निशाना चूक गया, और अगले ही लम्हे वो अपने आप में हिम्मत पैदा करता वहाँ से भाग चुका था। वो उसके पीछे तक आया, उसका निशाना फिर चूक गया, लेकिन हर दफ़ा नहीं। इस दफ़ा इब्राहिम ने गोली चलाई तो गोली उसके पैर के बीचों बीच लगी, और इस दफ़ा बदर खान ने भागने से ज़्यादा मुकाबला करना बेहतर समझा। अपनी जेब से पिस्तौल निकालते उसने एक साथ कई फायर कर डाले, जो इब्राहिम का सीना और बाजू चीर गए, और वो लम्हे में ज़मीं बोस हुआ। गोली दिल के करीब लगी थी। खुदा का शुक्र है कि आपने उन्हें वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया, वरना इनका बचना नामुमकिन हो जाता। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब गुजरा है। डॉक्टर ने बाहर आकर उसे ज़ाइना की खैरियत बताई थी। वो पुरसकून हो गया था। ताशफैन और दानियाल दोनों उसके दाएं बाएं बैठे बातें कर रहे थे। वो परसों से यहीं पर थे। इब्राहिम का ऑपरेशन कामयाब तो हो गया था, लेकिन वो कोमा में चला गया। इस दुनिया जहान का कोई होश नहीं था उसे। बच्चे घबराए हुए थे। शायद फायर की आवाज़ सुनने के बाद वो भी बहुत बड़े शौक में थे। वो घर वापस आया तो पहले रास्ते में उसे इब्राहिम गिरा हुआ नजर आया था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, खून काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो चुका था। जबकि वो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए अंदर भागा, क्योंकि उसे दानियाल की फिक्र थी। दानियाल सहमा हुआ ताशफैन के साथ लगा अलमारी के पीछे छुपा हुआ था, जबकि ज़ाइना घर के बीचों बीच पड़ी थी। वो बहुत मुश्किल से उन दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचा था। इब्राहिम का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कहा वो कोमा में चला गया, उसकी जान बचाना काफ़ी मुश्किल है। जबकि ज़ाइना का ऑपरेशन कामयाब हुआ था, लेकिन उसे होश अभी भी नहीं आया था। डॉक्टर ने कहा था कि 48 घंटे में कभी भी उसे होश आ सकता है। उसे इब्राहिम की फिक्र हो रही थी। अभी तो वो पहले सदमे से बाहर नहीं निकला था। अभी अभी उसने अपनी बीवी को खोया। ऐसे में मज़ीद रिश्तों को खो देना उसके बस में नहीं था। अल्लाह पाक का करम हुआ था कि इब्राहिम का ऑपरेशन कामयाब तो रहा था, लेकिन उसे होश आने में पता नहीं कितना वक्त लग जाता। इसीलिए ताशफैन को उसने अपने पास रखा हुआ था। जबकि ताशफैन जिद कर रहा था कि उसे पाकिस्तान जाना है, अपनी ताई अम्मी के पास। वो उन्हीं के पास रहने का आदी था, तो वो अपनी माँ के पास भी नहीं रहता था। ऐसे में इरफान के लिए 2 बच्चों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था। ये तुम क्या कह रही हो ज़ाइना? ऐसा कैसे मुमकिन है? वो तुम्हें तलाक कैसे दे सकते हैं? वो परेशानी से उसे देखने लगा था। ज़ाइना को आज ही होश आया था, जबकि इब्राहिम को कब होश आना था कोई खबर ना थी। ज़ाइना ने उसके सामने रोना धोना मचाया हुआ था। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इरफान के गले लग कर रोती। हाँ, उन्होंने मुझे तलाक दे दिया, और जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा शादी से पहले तुम्हारे साथ अफेयर था। उन्होंने कहा कि ऐसी औरत की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। वो तो तुमसे भी इस बारे में बात करना चाहते थे। पता नहीं उन्हें ये बात कैसे पता चल गई। तुम्हें पता है वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ज़ैनब की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम ज़ैनब से बहुत मोहब्बत करते थे, तुम्हारा बच्चा भी है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टा उन्होंने मुझे बातें सुनाई और कहा कि मैं कभी भी उनकी नहीं हो सकती, और ना ही इरफान कभी ज़ैनब का हो सकता है। उन्हें ये गलत फहमी हो
गई है कि तुमने जानबूझकर ज़ैनब को मारने की कोशिश की है, और तो और वो तुम्हारे और ज़ैनब के रिश्ते को लेकर बहुत अजीब बातें कर रहे थे। तुम्हें उनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए, क्योंकि इस गलतफहमी की वजह से उन्होंने मुझे तलाक देकर गोली मार दी। वो मुझे जान से मार देना चाहते थे, और सिर्फ मुझे ही नहीं, वो तुम्हें भी मार देना चाहते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि कभी तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता था। उनका कहना है कि मैं जाकर उसी शख्स के साथ रहूं जो मेरे दिल में बसता है। हाँ, ये सच है। मैं कभी भी इब्राहिम को अपने दिल में वो मकाम नहीं दे पाई जो एक शोहर को देना चाहिए, लेकिन मैंने उनके साथ इस रिश्ते को पूरी वफादारी से निभाया। मैंने कभी उनके हकूक में बेईमानी नहीं की। हाँ, ये सच है, मेरे दिल में हमेशा से तुम रहते थे इरफान, लेकिन फिर भी मैंने इस रिश्ते में कभी कोई बेईमानी नहीं की। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? वो उसका हाथ थामते हुए कहने लगी, जबकि इरफान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हुआ क्या है। वो शख्स कभी मेरा यकीन नहीं करेगा। उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे रहूँगी, क्या होगी मेरी ज़िंदगी? तुम खुद उनसे बात करके उनकी गलतफहमी को दूर कर दो, वरना वो तुम्हें भी गलत समझेंगे। वो फूट फूट कर रो रही थी, जबकि इरफान के पास कोई जवाब ना था। प्लीज़ रोना बंद करो ज़ाइना, जो कुछ भी हुआ वो तकदीर का लिखा था, और मैं किसी का जवाब दे नहीं। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी बीवी के साथ मुखलिस था, और ये बात मैं जानता हूँ। उसकी सफाइयाँ मैं किसी को नहीं दूंगा। वो उसे समझाना चाहता था, लेकिन ज़ाइना रोना बंद ही नहीं कर रही थी। हाँ, ये सब कुछ किस्मत का लिखा था। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें दिल में बसाया। मुझे क्या पता था कि सिर्फ इस गलती की वजह से मेरा हंसता खेलता घर बर्बाद हो जाएगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अब इब्राहिम मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी, कौन मुझे अपना नाम देगा, कौन मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा? इरफान, वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना ज़ाइना, तो मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूंगा। तुम इस तरह से मत रो। ज़ैनब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे यकीन है कि मेरे इस फैसले से ज़ैनब को भी खुशी होगी। शायद मैं तुम्हें ज़ैनब वाला मकाम कभी ना दे सकूं, लेकिन आज मेरी वजह से तुम इस मकाम पर पहुंची हो, तो मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। मैं शादी करूंगा तुमसे। इब्राहिम ने तुम्हें इस बात पर छोड़ दिया ना कि तुम्हारा मेरे साथ अफेयर चल रहा था, तो बस ठीक है। आज अभी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इब्राहिम से तलाक की वजह से तुम्हारे इद्दत के दिन पूरे होते ही मैं तुम्हें अपने निकाह में ले लूँगा। मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखने का वादा नहीं करता, क्योंकि ज़ैनब की जगह मैं कभी किसी को नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि तुम्हें ये तलाक का दाग मेरी वजह से सहना पड़ रहा है। वो उससे वादा करते हुए बोला, जबकि ज़ाइना एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। ये अलग बात थी कि उसका दिल आज खुशी से पागल हो रहा था, लेकिन इरफान, इस तरह तो इब्राहिम का लगाया हुआ इल्ज़ाम सच हो जाएगा ना। उनकी गलतफहमी यकीन में बदल जाएगी। वो उसे आगे के बारे में भी समझाना चाहती थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शख्स क्या सोचता है, जो अपनी बहन के लिए मेरी मोहब्बत नहीं देख सका, मेरे जज्बात और मेरी चाहत नहीं देख सका, वो भला और क्या करेगा? वो शक के उस मकाम पर आ गया था कि उसने तुम्हें छोड़कर तुम्हें जान से मार देने की कोशिश की। वो मुझे मार देना चाहता है ना, तो वो भला कभी किसी पर क्या करेगा यकीन? ये सारे मामलात तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा अब इब्राहिम से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो उसे देखते हुए बोला था। सच तो ये था कि उसके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे उस वक्त। वो ये जानना चाहता था कि इब्राहिम पर गोली किसने चलाई, उसे मारने की कोशिश किसने की, लेकिन फ़िलहाल उसके किसी भी सवाल का जवाब देने की कंडीशन ज़ाइना की भी नहीं थी। मेरा बच्चा, मेरी जान का टुकड़ा, वो उसे अपने सीने से लगाते बेहद खुश थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो आज खुशी से नाचें गाएं। उनकी तनावुश वापस आ गई थी, जबकि वो उनकी फैली हुई बाहें देखती उनमें आकर समा गई थी। ताया अब्बू, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो उनके साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि उसके रोने की वजह वो समझ नहीं पाए थे कि क्या हुआ है उसे, और वो क्यों रो रही थी। वो परेशान हो गए थे। आखिर अचानक इस तरह से रोने की क्या वजह? तनावुश, मेरी बच्ची, मेरी जान, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? ताशफैन कहाँ है? वो परेशानी से उससे पूछने लगे थे, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाती एक बार फिर से रोते हुए उनके सीने से लग गई। उसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और ना ही उसने कोई अल्फाज इस्तेमाल किए। वो सब समझ गए थे। लेकिन वो तो तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हें चाहता था, तुमसे बेपनाह। सब दिखावा था, सब कुछ दिखावा था ताया अब्बू। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, शायद वक्त गुजार रहे थे मेरे साथ। वो रोज़ से मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत रोज़ जैक्सन है। मैं उनकी ज़िंदगी में कहीं शामिल नहीं थी, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। उन्हें उनकी खुशियाँ देकर मैं उनकी ज़िंदगी से निकल आई हूँ। अब मैं कभी उनके पास वापस नहीं जाऊँगी ताया अब्बू। वो उनके सीने से लगी एक बार फिर से रोने लगी, जबकि इब्राहिम के पास कुछ नहीं था कहने के लिए। काश वो तसल्ली के कोई लफ्ज़ बोल पाते,
काश वो उसे कोई सफाई दे पाते अपने बेटे की तरफ से। उनके पास कुछ नहीं था कहने के लिए, लेकिन अपनी बच्ची को रोते हुए वो कैसे देखते। उसे अपने सीने से लगाए वो यूं ही आहिस्ता आहिस्ता चलते अपनी गाड़ी की तरफ आ गए थे। आज जाइना और इरफान का निकाह था। इब्राहिम कोमा में गए आज 6 माह गुजर चुके थे। ताशफैन के बार बार तंग करने पर वो उसे पाकिस्तान उसकी ताई अम्मी के पास भिजवा चुकी थी, जबकि दानियाल उससे इतना खौफजदा रहता था कि उसके सामने उसकी आवाज़ भी ना निकलती। दानियाल का खौफ देखकर उसे बहुत सुकून मिलता था। उसने पाकिस्तान फ़ोन करके बस इतना ही बताया था कि गोली लगने से पहले इब्राहिम ने उसे तलाक दे दी थी और अब वो अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही है, तो वो पाकिस्तान कभी नहीं आएगी वापस। और ताशफैन के साथ उसे कुछ खास लगाव ना था कि वो उसे अपने पास रखती, इसलिए उसने उसे उसकी ताई अम्मी के पास भेज दिया था। जबकि इब्राहिम की वालदा ने इब्राहिम की हालत का सुनते ही उसे पाकिस्तान ले आने की जिद पकड़ ली थी। वो अपने तीनों बच्चों को खो चुकी थी। इब्राहिम उनकी आखिरी औलाद था जो उनके जीने का सहारा था। ख़ानदान के ही कुछ लोग बड़ी मुश्किल से उसे पाकिस्तान ले आने में कामयाब हुए। पाकिस्तान में उसका इलाज अच्छा चल रहा था, लेकिन अब तक वो कोमा से बाहर नहीं आया था और डॉक्टर्स के मुताबिक उसका जल्दी से कोमा से निकलना मुमकिन भी नहीं था। इसलिए तो वो बेफिक्र हो चुकी थी। उसकी इद्दत 2 महीने पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन बदर खान पुलिस के हाथ लग गया और वो उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि बदर खान का फ़ोन गुम हो चुका था। अब उसके पास कोई भी रिकॉर्डिंग मौजूद ना थी जिस पर वो उसे तंग कर पाता। गोली लगने की वजह से वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता किसी सेफ मकाम को ढूंढ रहा था। इस दौरान कब उसने अपना फ़ोन गुम कर दिया वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन उसके पास जाइना के खिलाफ वही एक सबूत था जिस पर वो उसे गुनाहगार साबित कर सकता था। बदर खान को बहुत सारे लोगों को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद हुई थी, जबकि बहुत कोशिश के बाद भी बदर खान ये बात साबित नहीं कर सका कि इन सब चीज़ों में जाइना भी शामिल है। बल्कि जाइना ने इरफान को इस तरह से ये सारी बातें बताईं कि इरफान सिर्फ उसी पर यकीन करने लगा। उसने बदर खान के इल्ज़ामात को इब्राहिम की साजिश करार दिया। इन 6 महीनों में इरफान ने उसे इतना इब्राहिम के खिलाफ कर दिया था कि वो इब्राहिम का नाम भी नहीं सुनना चाहता था। और यही वजह थी कि जाइना अब बिल्कुल पुरसकून हो गई थी। आज उन दोनों का निकाह था और आज जाइना की ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। लेकिन इन 6 महीनों में जाइना ने जो चीज़ हद से ज़्यादा नोट की थी वो ये थी कि ज़ैनब की जगह वो कभी नहीं ले सकती थी। उसकी ज़िंदगी में सिवाय ज़ैनब की और कोई लड़की आ ही नहीं सकती थी। वो मोहब्बत नहीं करता था ज़ैनब से, उसके साथ इश्क का रिश्ता था उसका, लेकिन अब वो इस रिश्ते से बहुत आगे निकल आया था। वो जाइना की मोहब्बत को इस उम्र की एक नादानी करार देता था जो जाइना को आग लगाने के लिए काफ़ी थी बात। और जाइना खाली हाथ थी। उसके माँ बाप ने उसे कुछ भी नहीं दिया था, बल्कि 3 महीने पहले जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे देने की बजाय किसी ट्रस्ट के नाम कर चुके थे। लेकिन उसे परवाह नहीं थी। इतने सालों में इरफान खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। वो एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसके सहारे वो सारी ज़िंदगी खुशी से काट सकती थी। अब उसे अपने माँ बाप की दौलत की ज़रूरत भी ना थी। उसे अफसोस था कि उसने इरफान का साथ निभाने की बजाय लालच में आकर अपने माँ बाप की बात मान ली थी। तनावुश, मेरी बच्ची कुछ बता तो सही, आखिर हुआ क्या है वहाँ जो तू इस तरह अकेली वहाँ से यहाँ आ गई और इस तरह से रो क्यों रही है। ताई अम्मी उससे मिलते ही उसे सीधा अपने कमरे में ले आई थी। सदफ और खाला के सामने उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके थे और जो आंसू गिर गए थे उन पर बहाना बना दिया था कि अपने ताया ताई को इतने अरसे बाद देखकर वो इमोशनल हो गई है। लेकिन ताई अम्मी तो उसकी रग रग से वाकिफ़ थी। उन्हें कैसे पता ना चलता कि उनकी बेटी पर कोई मुसीबत आ गुजरी है। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने तरनावुश को अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था और बेटी के मामले में उन्होंने एहतियात भी बहुत की थी। वो ना तो उसे किसी गलत रास्ते पर भेजना चाहती थी और ना ही उन्होंने उसे बेजा फरमाइशें करने दी थी। उसके मामले में उन्होंने काफ़ी सख्ती से काम लिया था, क्योंकि उसकी तरबियत पर अगर कोई भी समझौता करती तो शायद उनकी बेटी को बहुत कुछ सहना पड़ता। लेकिन उनकी बेटी तो अब भी सह रही थी। ताई अम्मी उसे कमरे में लेकर आकर उससे वजह पूछ रही और ताई अम्मी के सामने वो अपने जज्बात पर काबू ना कर पाई। उनके सीने से लगी वो फूट फूट कर रोने लगी। हार गई ताई अम्मी, आपकी बेटी हार गई। मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी उस शख्स को अपना नहीं बना पाई। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो किसी और को चाहता है। वो उससे शादी भी करने वाला है। भरी महफिल में उस लड़की ने उसके कदमों में बैठकर अपनी मोहब्बत का इकरार किया और उन्होंने उससे शादी का वादा कर लिया मेरी आंखों के सामने। वो बुरी तरह से रोते हुए उन्हें बता रही थी, जबकि ताई अम्मी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। यकीन करना तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि उनकी बेटी अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तहान में नाकामयाब होकर लौटी थी। लेकिन ताशफैन से ये उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि ताशफैन जिस औरत का बेटा था उसने
तो उनका पूरा ख़ानदान बर्बाद कर दिया था, तो वो कैसे ताशफैन से कोई अच्छी उम्मीद करती। उन्हें तो पहले ही अपनी बेटी को वहाँ भेजना गवारा ना था, लेकिन ये इब्राहिम की ज़िद थी जो उसे अपने बेटे के साथ रुखसत कर दिया। एक वक्त था जब उन्होंने इस बात की ज़िद लगाई थी कि ताशफैन से तनावुश को तलाक दिलवा कर वो अपने वारिक के साथ उसकी शादी कर देंगी, लेकिन इस बात पर वारिक ने बहुत हंगामा किया था, क्योंकि उसके लिए तनावुश अपनी बहन की तरह से थी। वो उसके बारे में कुछ गलत सोच भी नहीं सकता था, और वो वैसे भी बचपन से मायरा से मोहब्बत करता था। उसकी ज़िंदगी में मायरा के अलावा और कोई लड़की नहीं आ सकती थी। तनावुश को छोड़कर उन्होंने सदफ के बारे में सोचा था, और उस पर भी उसने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन तनावुश पर ऐसी मुसीबत टूटेगी ये तो उन्होंने सोचा ही ना था। वारिक और इब्राहिम उन्हें यही कहते थे कि तनावुश अपने घर बहुत खुश है, उसका शोहर उसका ख्याल रखता है, उससे मोहब्बत करता है। वो उसके मामले में बेफिक्र होने लगी थी। वो तो खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि सब कुछ ठीक हुआ नहीं, सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले दिन था।